Let's get started with the problem for this episode. That is this. We are going to solve the problem number 11th from this series, that is counting the frequency of each character in a string. ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या है. ओके, so we have to write a program to count how many times each character appears in a given string. Okay, obviously एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है जिससे it is easy to understand. Okay, by just reading it. Okay, कि वी हैव टू मेक अ प्रोग्राम जिसमें सिंपली यूज़र एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा. ओके, लेट दैट स्ट्रिंग बी ऑफ वन वर्ड ओनली. ओके, कोई इशू नहीं है. ओके, सो द यूज़र विल इनपुट द स्ट्रिंग हियर लाइक दिस, एंड आउटपुट में कुछ ऐसे रिजल्ट आना चाहिए like we have to take each of the characters, each of the elements, yeah, you can say each of characters from that string. Okay, that is HELLO, each characters, and basically we have to count the occurrences, the number of occurrences of that particular character. Okay, that is H जो है कितने बार appear हुआ है उस complete string में. Okay, E कितने बार appear हुआ है उस complete string में. So okay, H आप देख सकते हो एक बार appear हुआ है, so it is in the output H comes out to be 1. Okay, E एक बार है तो okay, it is coming out to be 1. L 2 times appear हुआ है, so you can clearly see it is coming out to be 2. Okay, and so on and so forth, right? So we have to basically write a program for this only. ठीक है, all right, so I hope so the problem is clear. Okay, it is pretty straightforward. इसमें simply read करके हमें समझ में आ गया. Now let's really quickly deep dive into the code bit of part. Okay, और डायरेक्टली हम कोड कर करके लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि व्हाट इज द ओवरऑल लॉजिक वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So okay, let's create a file here. This is 11th number episode and frequency. Okay, so let's start writing the boilerplate code. Okay, simply include iostream, and we're using the standard namespace, obviously, with the main function return 0, right? Okay, so I hope so this boilerplate code is clear. Okay, now so our first task is to input a string from the user. So simply हम string, यहाँ पर एक string हम data type का एक simple एक variable create कर लेंगे like the string. Then we are naming the variable as the string. Okay, feel free to give any name you want. Then using cin we are capturing this particular string, and before that obviously let's write a display message like enter. Okay, enter the string like this. Okay, yeah. Okay, so yeah, we are all set. हमने string accept कर लिया है. Now here comes the logic, here comes the important concept. Okay, द थिंग इज अब हमें द कॉन्सेप्ट जैसे जो बेस्ट और ईजिएस्ट वे है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आई एम टेलिंग यू दैट. ओके, कि वी हैव टू नाउ क्रिएट एंड ऑब्वियसली वी हैव टू क्रिएट एन एरे हियर. जस्ट लेट्स नेम इट एनी, लाइक यू कैन नेम इट एनीथिंग. ओके, आई एम नेमिंग इट एज ओके फ्रीक्वेंसी एरे. ओके, फ्रेक एरे. ओके, जस्ट इंटरप्रेट एज फ्रीक्वेंसी एरे. बेसिकली ये एरे, ओके, नाउ यू नो इफ वी आर क्रिएटिंग एन एरे वी विल क्रिएट ऑब्वियसली उस एरे में जो डेटा स्टोर होगा, जो एलिमेंट स्टोर होंगे, उसके जो डेटा टाइप रहेगा. सो आई हैव गिवन इट एज इंट. सो उस एरे में जो डेटा स्टोर होगा दैट विल बी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. या नाउ what will be the number of elements? So basically in this case we are keeping the number of elements as 256. Now why this? Let me explain. Okay, so and we are equalizing this array to 0, and yeah, make sure you give curly braces properly. Okay, curly braces देना है यहाँ पर. Okay, okay, so now I will explain you why this. Okay, what is this basically? Why we have created the array of size 256, and also why we have initialized with just a single 0. Okay, so you know the concept of ASCII. Okay, there is a number associated, like each character we have a number associated to it. We have a ASCII code, ASCII value associated to it, like say for example h. Okay, this h string, and make sure you know this, आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, आई एम राइटिंग द स्मॉल h. ओके, तो स्मॉल h की लाइक आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ASCII कोड, ASCII वैल्यू ऑफ लोअर केस h, सो इट इज 104. यू कैन सर्च इट एज वेल, h ASCII वैल्यू. ओके, h ASCII वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल h का मैंने जैसे कहा कि 104 होता है, एंड अपर केस h का ऑब्वियसली 72 होता है, and so on and so forth. Okay, for all the characters. Okay,
सो मैंने 256 क्यों लिया द एरे, यू कैन सी मैंने 256 लिया है द लेंथ ऑफ द एरे. वाई सो? बिकॉज टोटल जो इन टोटल आपका आस्क की वैल्यू होता है, आप यहाँ पर सर्च भी करेंगे, सो इन टोटल जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लाइक 0 to लाइक 256 के रेंज में लाई करते हैं. ओके, सो आई हैव गिवन दैट एरे, बेसिकली जो भी वो हमने फ्रेक एरे बनाया था, ओके, वो उस पर्टिकुलर एरे का मैंने साइज दिया है 256. ओके, सो एंड यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने इक्वलाइज किया है, इनिशियलाइज किया है सारे, मतलब जितने भी आप मैंने ये बेसिकली इज इक्वल्स टू 0 लिखने का यहाँ पर ये इंटरप्रेट होता है कि जितने भी पोजिशंस है सब में 0 0 0 0 वैल्यू फिल हो जाएगा. लाइक ऑब्वियसली ये 256 का एरे है तो ऑब्वियसली 256 एलिमेंट्स रहेंगे इस पर्टिकुलर एरे में. तो 0 से ऐसे इक्वलाइज करने का मतलब इस पे पॉइंट में ये हो जाएगा कि जितने भी 256 प्लेसेस रहेंगे सारे 256 प्लेसेस में 0 0 0 0 फिल हो जाएंगे. वाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज अब यहाँ पर आगे मूव ऑन करते हैं हम, सो यू विल गेट इट दैट वाई वी आर डूइंग दिस. ओके, सो नाउ बेसिकली व्हाट वी विल डू, वी विल रन अ लूप in this particular string. Okay, how this is? Okay, so let me first of all explain you this key. If you guys are familiar with Python, let me write a test.py. Okay, just एक मैंने Python का फाइल क्रिएट किया. I hope so you guys know this concept in Python that's called obviously loops. पता है loops में traversing करते हैं हम Python में. How? Say for example it is we have a string like the string in Python. We have a simple string like okay hello there, कुछ भी ऐसे हमारे पास string है. सो आई वॉन्ट टू रन, मतलब मुझे इस स्ट्रिंग के हर एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करना है, हर एलिमेंट्स को मुझे ग्रैब करना है. वट हाउ आई डू इन पाइथन फॉर आई इन, मतलब वो अब मैं रेंज एंड ऑल लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ एंड देन इफ आई गो एंड प्रिंट दिस आई गेट दोज वैल्यूज, राइट. एज यू कैन क्लियरली सी आई एम गेटिंग so as you can see I am getting the individual characters from that particular string. Okay, so अब ये तो ओके बात रह गई पाइथन की, बट हाउ वी विल डू इट इन, लाइक इज देयर एनी वे टू डू, बिकॉज अब तक आपने अगर देखा C++ में यू आर फेमिलियर विद int एंड i इज इक्वल्स टू 0, दीज काइंड ऑफ लूप्स, बट इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज दैट कि हम ऐसे ट्रैवर्सिंग वाले लूप्स लिख सकें इन C++? या डेफिनेटली वी हैव इट. कैसे? आई एम टेलिंग यू दैट. ओके, सो जस्ट आप ऑब्वियसली आप ऐसे फॉर लूप लिखिए. ओके, इनिशियलाइज द फॉर लूप. अब फॉर लूप के बॉडी के अंदर आपको एक्चुअली इस पर्टिकुलर कंडीशन वाले पार्ट में आपको ये देना है, सबसे पहले यू हैव टू गिव द डेटा टाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल कैरेक्टर विच यू आर ग्रैबिंग एक्चुअली. ठीक है, सो इन द स्ट्रिंग ऐसे कुछ रहेगा, हेलो देयर एंड हेलो वर्ल्ड ऐसे कुछ रहेगा. सो यू नो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स डेटा टाइप is string only, या फिर obviously हम individual ले रहे हैं, so we can give the data type as char. You know, I hope so you know in C++ char मतलब वो single character का data type होता है. And just simply a name, a simple एक कोई भी आप जैसे एक i वैल्यू भी ले सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर केस में to understand better आप ch ले लो. ओके, सो ch means character, वो कैरेक्टर देन आप कोलन लगा के आप सिंपल यहाँ पर लिख लो, कोलन लगा के आप वो पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखोगे, दैट इज द स्ट्रिंग. वो पर्टिकुलर वेरिएबल कौन? जिसमें हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज आई होप सो क्लियर. सो दिस इज हाउ यू डू ट्रैवर्सिंग इन स्ट्रिंग, ट्रैवर्सिंग इन C++ विद स्ट्रिंग एक्चुअली. सो या ऑल सेट. सो नाउ अब ये करने से हुआ क्या, दैट अब हम वो जो स्ट्रिंग रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल दैट स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी लाइक हेलो वर्ल्ड और समथिंग. सो से फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग इज हेलो और समथिंग. सो फर्स्ट हेलो, ओके हेलो है मान लो. सो फर्स्ट कैरेक्टर विल बी हेलो. व्हाट वी विल डू बेसिकली, हम क्या करेंगे, फ्रैक एरे. ओके, फ्रैक एरे पर बेसिकली जो ch वाला पोजीशन पे जो आएगा उसमें प्लस प्लस करेंगे. ओके, नाउ सो वेट डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट आई डिड हियर राइट नाउ. हुआ क्या कि ये जो आप लाइन ऑफ कोड देख रहे हो, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस लाइन ऑफ कोड. ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव जस्ट रिटन दैट दिस पर्टिकुलर लाइन देयर. इससे बेसिकली होगा क्या, सो एज यू रिमेंबर हमने जो एरे बनाया प्रॉपर पूरे 256 प्रॉपर, मतलब आप देख सकते हो प्रॉपर 256 पूरे एलिमेंट्स है, उसमें 256 प्लेसेस है और सब में इनिशियली 0 0 0 इनिशियलाइज्ड है. सो ये लिखने से क्या होगा पता है कि ओके यू नो फर्स्ट टाइम व्हेन द लूप विल रन, से फॉर एग्जांपल द आर स्ट्रिंग इज सिंपली हेलो और समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट टाइम द लूप विल रन, सो ऐसे कुछ इंटरप्रेट होगा, यू नो फ्रैक एरे ch की जगह ऑब्वियसली ऐसे h आ जाएगा बिकॉज फर्स्ट टाइम द लूप रन्स, तो h यहाँ पर होल्ड होगा. सो बेसिकली राइटिंग दिस, ओके फ्रैक एरे और इंडेक्स मतलब वो इंडेक्स वाले प्लेस में h, राइटिंग दिस इज आइडेंटिकल और इज एग्जैक्टली सेम टू राइटिंग दिस 104, बिकॉज
जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया h का जैसे आस्की की वैल्यू जो होता है 104 होता है। सो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो जीरो बैठा, यू नो राइट, कि मैंने अभी भी बताया कि 256 का पूरा एरे बन जाएगा, उसमें 256 प्लेसेस में 0 0 0 0 प्लेस्ड रहेंगे। सो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम जब लूप रन हुआ, फ्रैक एरे ऑफ h हुआ, तो फ्रैक एरे ऑफ h दैट इज ऑटोमेटिकली वो इट इज इंटरप्रेटेड टू फ्रैक एरे ऑफ 104, मतलब 104 पोजीशन में जो जीरो होगा वो हम प्लस कर देंगे, वो हम ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्लस प्लस किया है, ओके, दैट मीन्स कि वैल्यू इंक्रीमेंट हम कर देंगे। सो द थिंग इज अब होगा क्या कि जितने से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एच 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 एंड देन हेलो ऐसे कुछ है, सो यू कैन क्लियरली सी कि 4 बार h है यहाँ पर। सो लाइक एवरी टाइम द लूप रन्स, जैसे ही h हुआ, सो इट विल इंटरप्रेट फ्रैक एरे ऑफ 104 एंड देन 104 वाले पोजीशन में जितने बार भी वो चीज़ अपीयर होगा वो प्लस प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी 0, फर्स्ट टाइम द लूप विल रन, h मिला तो 0 to 1 हो जाएगा, सेकेंड टाइम 1 to 2, थर्ड टाइम 2 से 3, फोर्थ टाइम 3 से 4th। So finally we get the, you can say we get the frequency, we get the number of occurrences of that particular character, that is h, और वो h 4 times appear है। So you can imagine this right, कि वो आप array imagine कीजिए कि वो array कुछ ऐसे बन जाएगा कि वो particular array में जो 104th पोजीशन में जो 0 इनिशियली था, तो इस पर्टिकुलर लूप से गो थ्रू होने के बाद वो 0 से 4 हो जाएगा, एंड सेम गोज फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ओके, आई होप सो यू गेट द आइडिया। Now let's continue in our code. Now let's continue writing our code. So now the thing is कि हमने यहाँ पर array पूरा यहाँ पर मतलब array तो proper update हो गया है। Now how we will be displaying it? Okay, so again we will run this loop, exactly ये same loop run करेंगे। So obviously we will traverse, okay, so for again traverse over this particular string, okay, and why we are doing it? Okay, क्योंकि why we are doing it, क्योंकि obviously अब हम क्या करेंगे, एक बार हुआ क्या कि एक बार हमने एरे अपडेट करा लिया, नाउ वी हैव नाउ एट दिस पॉइंट, मतलब हम देखें तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में मैं बताऊं एट दिस पॉइंट, आई होप सो यू गेट द आइडिया। सो अब होगा क्या, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद होता क्या है कि ऐसे कुछ होगा कि से फॉर एग्जांपल ए आ गया, लाइक यू नो एच, ओके, तो 104th पोजीशन में ऑब्वियसली 104th इंडेक्स पे जो 0 था वो अभी लाइक कुछ जितने बार h अपीयर होगा, से फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स h अपीयर हुआ है तो वैल्यू 5 रहेगी। सो व्हाट वी विल डू कि वी विल चेक, ऑब्वियसली इन ईच केस वी विल चेक कि जो फ्रैक एरे का जो ch है, मीन्स ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम द लूप विल रन, से फॉर एग्जांपल द स्ट्रिंग इज हेलो, फर्स्ट टाइम द लूप विल रन, द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी h। सो फ्रैक एरे h, अगर वो h में जो पोजीशन है, लाइक ऑब्वियसली 104 पोजीशन नंबर बैठा है, वो अगर 0 से ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली बिकॉज 0 से ज़्यादा हुआ दैट मीन्स ऑब्वियसली काउंटेड है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है वैल्यू, उस पर्टिकुलर केस में आप प्रिंट करवा दोगे व्हाट, कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है कुछ इतने बार अपीयर हुआ है। सो या लाइकवाइज ऑब्वियसली, तो ऐसे आप प्रॉपर ऐसा ब्यूटिफाई करके एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दोगे। सो यू आर राइटिंग लाइक ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है इसका जो ऑकरेंसेस है वो कुछ इतने हैं। सो व्हाट विल राइट, फ्रैक एरे का जो आप उस पोजीशन में जो वो बैठा है उसका वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, एंड या दैट्स इट। ओके, एंड गिव अ एंडल हियर एज वेल। बट या हियर्स द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद द थिंग इज कि होता क्या है ना कि आप डुप्लीकेशन, अगर आप सिंपली देखो इसे ही आप रन कर दोगे, या फार नाउ दिस कोड इज लाइक परफेक्ट, ओके, दिस कोड इज परफेक्ट, बट होगा क्या इसे आप रन करोगे, सो एच 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 मतलब हर टाइम वो आपको डुप्लीकेशंस दिखेंगे वैल्यू के। सो होता क्या, टू बेसिकली टू गेट रिड ऑफ दोज डुप्लीकेशंस, आपको एक बार जब आपने रन कर लिया, एक बार जब आपने प्रिंट कर लिया, देन आप वापस चाहते हो कि वापस जीरो हो जाए उस पर्टिकुलर पोजीशन में। तो क्या बार बार अगर लूप रन हो, ऑब्वियसली बार बार लूप रन होगा तो वो बार बार एलिमेंट वो डुप्लीकेशंस ना प्रिंट हो। ओके, सो मतलब जस्ट हमें एक बार में चाहिए कि एक बार में h इतने बार अपीयर हुआ है। सो या वी वांट दैट। सो करना क्या है, फ्रैक एरे का वो पोजीशन में सिंपली हम 0 से इनिशियलाइज करवा देंगे। सो या नाउ दिस कोड इज completely फाइन, एंड नाउ लेट्स रियली क्विकली रन दिस कोड एंड लेट्स चेक कि प्रॉपर हमारा सब आउटपुट एंड ऑल सब सही आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ लेट्स फाइनली रन दिस कोड। ओके, it is asking me for entering the string. Let's enter HHH. Okay, simple. Let's enter HHH. इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में और कुछ है भी नहीं, सिर्फ h है, एंड वी नो वी कैन सी h 3 टाइम्स है तो h 3 होना चाहिए।
and yeah, you can see indeed the answer is correct. The answer is coming absolutely correct. H3 हुआ. सो अच्छा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. तो अगर मान लो ये जो मैंने, अगर मे बी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, सो अगर ये जो जीरो से इनिशलाइज अगर नहीं करता, सो देखो कुछ ऐसे चीज़ हो रही होती. अगर मैंने एच किया रहता, सो देखा कि जितने बार भी एच है वो उतने बार प्रिंट होता है और उतना वो डुप्लीकेशंस यहाँ पर एक तरीके से हो रहे हैं, राइट. सो टू गेट रिड ऑफ दिस, जैसे ही प्रिंट हो गया, जैसे ही हमारा एक बार प्रिंट हो गया, जस्ट इनिशलाइज द वैल्यू टू जीरो. ओके, just re-initialize the value to 0. So this is the thing. Okay, so now let's give some other, like let's give some name as Tanishq. Okay, so you can see इसमें देखा जाए तो सारे ही characters एक ही बार है, I guess. Yeah, so सारे एक बार है, तो yeah, सारे एक बार है, तो you can clearly see कि वो 1111 print हो रहा है. But yeah, if you give some other name like maybe Apple. Okay, Apple, so you can see P2 times appear हुआ है, so P की value 2 होनी चाहिए, या L1, E1 and A1. Yeah. So yeah, our output is coming absolutely correct, and our code is absolutely correct as well. So yeah, this was the code for today's problem.